أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آسان نیکیوں میں دیکھیے سب سے آسان چیزیں جیسا کہ میں نے آپ کو وقتاً فوقتاً بتائیں، ابھی میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے اتنے فضائل ہیں کہ احادیث میں بھرے پڑے ہیں، بہت زیادہ احادیث ہے اس کے بارے میں کہ ان میں سے ایک مستقل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے نا تو ایک بڑی موٹی کتاب تیار ہو جائے کہ جن میں درود شریف کی اہمیت اور فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے علماء نے اس کی مختلف کتابیں بھی تیار کی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10 گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ سنن نسائی اور مسند احمد سے ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اور درود شریف میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور سب سے مختصر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں اس سے بھی درود شریف کی فضیلت اور اہمیت ہمیں حاصل ہوتی ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے تو پورا جملہ ہمیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، صرف سلم یا ایسا کچھ نہیں لکھنا چاہیے، پورا لکھنا چاہیے، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے پہلے جیسے ہم نے آسان نیکیوں کی کلاس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہر پل آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے، آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے، اور ذکر سے تر رکھنی چاہیے زبان۔ تو اسی طرح میں آپ کو اسی کی دوسری کڑی پر ہوں کہ درود شریف سے بھی ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ صبح کے اذکار میں درود شریف پڑھیں کثرت سے، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ آتے جاتے اپنی دنیا کی کام کرتے ہوئے آپ درود شریف کی کثرت کریں، اور یہ سوچیں کہ میری 10 نیکیاں ہر بار درود شریف کے پڑھنے سے میری نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 10 درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں عام حالات کی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے مخصوص کلاسز کر رہے ہیں، اسپیشل کلاسز کر رہے ہیں کہ ہم آسان نیکیوں کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو کیسے زیادہ بڑھا سکتے ہیں، بھاری کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ عام دنوں میں اس کا اجر و ثواب ہے، آپ اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے کہ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کتنا زیادہ ہے، عام دنوں سے کتنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے یا 700 گنا زیادہ ہے، یا اللہ کی رحمت ہی جانتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے۔ اس کو ہم لفظوں کی گنتی کا جامع نہیں پہنا سکتے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، جس کے لیے میں اکثر آپ کو حدیث قدسی سناتی ہوں کہ تمام جن و انس اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ساری کی ساری دعائیں اللہ ان کی قبول کرے اور ساری کی ساری خواہشات ان کی اللہ تعالیٰ پوری کر دے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہ ہوگی جتنی کہ ایک سوئی کے ناکے میں پانی آتا ہے۔ وہ ہے اللہ کی رحمت بے حساب۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم درود شریف کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود ابراہیمی خاص طور پر جب ہم جمعے کو دن پڑھتے ہیں تو لے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے درود بھیجا ہے، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم اس دنیا میں تو کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اظہار کیسے کریں، ہم اظہار کیسے کریں؟ گفٹ دے کر ہم اظہار کرتے ہیں، گفٹ دے کر۔ دیکھیے کوئی بھی اپنا دل نکال کے کسی دوسرے کو دکھا نہیں سکتا، اپنی محبت کا اظہار کر کے ہی بتا سکتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے ان کی سنتوں پر عمل کر کے اور ان پر کثرت سے درود شریف بھیج کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے۔
तो देखें कि उसका कितना ज्यादा अजर सवाब है। और आम दिनों की निस्बत तो वैसे ही रमजान की नेकी, छोटी सी नेकी भी आम दिनों में इतनी अहम है। तो आप बार बार देखें, गौर करें कि रमजान में तो हर छोटी नेकी भी इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा उसका अजर सवाब बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे हर वक्त नेकी करने की तौफीक दे। किसी वक्त आप अल्लाह का जिक्र करें, किसी वक्त आप अल्लाह ताला के नबी के ऊपर दुरूद भेजें, ताकि आपकी जुबान हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र से तर रहे। इसी के साथ दुरूद शरीफ के साथ साथ मैं अब अपने अगला एक टॉपिक साथ ही शामिल करती हूँ, शुक्र का। कि अल्लाह ताला की देखें अनगिनत नेमतें हर इंसान के पास मौजूद है ना। पास लोग समझते हैं ना कि मेरे पास फला एक चीज नहीं है। एक चीज के नहीं होने से दूसरी नेमतें कम नहीं हो जाती। आप देखें, चलना फिरना, बोलना, हंसना, किसी चीज को उठा लेना, हाथों की उंगलियां, आंखें, कान, नाक, पूरा जिस्म, यानी कि सोचने समझने की सलाहियत, ये सारी चीजें भी तो नेमतें हैं ना। कि अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया, जिंदगी दी, बनाओ इसको, मैं तुम्हारे लिए जन्नत तैयार करके बैठा हूँ, उसमें आओ। तो ये सारी बेशुमार नेमतें हैं कि हम तो उसे गिन नहीं सकते। तो ये सारी नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि अगर शुमार किया जाए ना तो मुमकिन नहीं होगा। कुरान करीम में इरशाद होता है कि अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो इनको ठीक ठीक तुम शुमार ही नहीं कर सकोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर दूसरी नेमतों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ जिंदगी की नेमत जो है ना, वो इतनी बेहिसाब है कि हर सांस में दो नेमतें पिना है। यानी दो नेमतें हर सांस में छुपी है। सांस का क्या, दो नेमतें कैसे? सांस का अंदर जाना एक नेमत और बाहर आना दूसरी नेमत। क्योंकि अगर सांस अंदर जाए और बाहर ना आए तो फिर मुसीबत है ना, और बाहर आए और अंदर ना जाए तो ये दूसरी मुसीबत है। तो ये देखे ना, तो हम इस चीज को सोचते हैं कोई। लिहाजा हर सांस पर इंसान को दो नेमतें मिलती हैं और हर नेमत शुक्र का तकाजा करती है। लिहाजा अगर हर सांस पर आदमी एक बार शुक्र अदा करे, तब भी सिर्फ सांस की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। दूसरी बेशुमार नेमतें तो अपनी जगह हैं, उनका शुक्र भला कैसे अदा होगा। गर्ज के अल्लाह ताला की नेमतों का ठीक ठीक शुक्र अदा करना तो इंसान के बस से बाहर है, लेकिन कसरत से शुक्र अदा करते रहना एक इंतहाई महबूब अमल है, बहुत पसंदीदा है, जिस पर सवाब भी बहुत ज्यादा बेहिसाब है और नेमतों में इजाफा भी होता है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी मजबूत होता है, मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुक में पुख्तगी आती है, तरक्की होती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और तुम मेरा शुक्र करो, और मैं तुम्हारा और मेरी नाशुक्री ना करो। ये देखे ना, आप आयत देखिए कुरान पाक की सूरह बकरा में, आप यहाँ से माशाल्लाह पढ़ के गुजरी है कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। देखें, अल्लाह ताला उस बंदे का जिक्र करते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिक्र की किस्म है, आपने जिक्र किया, अल्लाह का नाम लिया, आपने जिक्र किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, आपने शुक्र किया, ये भी जिक्र की किस्म है। अल्लाह ताला ने कहा तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अल्लाह के बंदों का जिक्र तो बंदों के दरमियान होगा ना, और जो अल्लाह जिक्र करेंगे आसमानों पर, बुलंदियों पर, अपने फरिश्तों के सामने, वो कितना अजीम होगा, जरा ये सोचिएगा। और साथ ही अल्लाह ने कहा ना, वशकुरूली, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और तुम नाशुक्री नहीं करो। यानी अल्लाह ताला ने तलकीन की है ना कि तुम शुक्र अदा करो। तो एक और दूसरी जगह पर इरशाद है, वसनज्ज़ी शाकिरीन, और हम शुक्र करने वालों को अच्छा सिला देंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला इन शकरतुम ला आजीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और दूंगा, ज्यादा दूंगा, मजीद दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखना कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। आप देखिए, आप और मैं अपने अमल का जायजा ले कि हम सुबह से शाम तक कितना शुक्र करते हैं और कितनी नाशुक्री करते हैं, और अल्लाह के इस फरमान को सामने रखना है और दुआ करनी है, अल्लाह हमारा अगर हमसे कुछ नाशुक्री हो गई हमें माफ कर दे और हमें तू अपना शुक्र करने वाला बना। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बहुत पसंदीदा महबूब है, और नाशुक्रा जो है ना, सख्त निहायत नापसंद है, अल्लाह ताला को निहायत नापसंद है। क्योंकि नाशुक्री इंतहाई तंग नजरी की अलामत है। जो लोग नाशुक्री करते हैं समझ जाएं कि वो तंग नजर है। नाशुक्रे शख्स को अगर कोई जरा सी तकलीफ पहुंच जाए तो वो उसी को लेके बैठा रहता है, और अपनी दूसरी जो बेशुमार नेमतें हैं ना, वो उसको नजर ही नहीं आती। बस वो उसी को लेके रोता रहता है, गाता रहता है, हाय मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अरे भाई,
اللہ نے तुम्हें जो बाकी नेमतें दी हैं वो कौन से खाते में है, वो कौन सी गिनती में है, उस पर कितना शुक्र अदा कर रहे हो, उसको भी तो कंसीडर करो। नहीं, तो ये होता है नाशुक्रा। और जरा सी तकलीफ को लोग, इस तरह के लोग जरा सी तकलीफ को पहाड़ बनाकर उसी का रोना रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी भी अजीरन किए रखते हैं, और अपने साथियों की, बाकियों की, जो उनसे मिलता है करीब वाला है, वो बेचारा भी, वो भी रोता पीटता है, उसकी हालत उसकी भी परेशान करके रखते हैं, हर वक्त रोना पीटना लगा के परेशान करके दूसरों को भी परेशान बनाते करते रहते हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा जिंदगी में। देखिए कम वक्त है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप देखिए अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखिए कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जो कुछ मयसर है उसको तो अपना हक समझते हैं, और अगर कोई एक चीज नहीं है तो उसको इतना बड़ा पहाड़ बनाएंगे, अपने आप को भी डिप्रेशन में डाल के रखेंगे, अपने आप को भी स्ट्रेस में रखेंगे। और जो भी उनके करीब के लोग होंगे, किसी ने फोन कर लिया, कोई मिलने चला गया, या कोई घर में रहता है, उसकी भी जिंदगी अजाब। कभी खुशी तो है नहीं, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट तो है नहीं, कभी शुक्र तो है ही नहीं। अब अल्लाह की नेमतें नजर ही नहीं आती, कोई एक चीज नहीं है तो बस वो ही नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। तो ये नाशुक्रे का हाल मैंने बयान किया। अब इसके बरखिलाफ आप शुक्रगुजार बंदे का हाल देखें, कि तकलीफ का हाल हो, कोई भी हाल हो, उसकी नजर अल्लाह की नेमतों पे रहती है। वो बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी अल्लाह ताला की नेमतों को नहीं भुलाता, अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करता है, और साथ साथ तकलीफ के दूर होने की दुआ करता है मुसलसल, क्योंकि उसको अल्लाह पे भरोसा होता है ना, कि मेरा रब मेरे साथ है। जैसे कि फर्ज करें कि किसी शख्स को कोई बीमारी हो गई, अब वो नाशुक्रा है, तो वो अल्लाह ताला की सारी नेमतों को भुलाकर अपने आप को सबसे ज्यादा सितम रसीदा मजलूम बनाकर नाशुक्री के कलमात हर वक्त जबान से निकालेगा। लेकिन अगर शुक्रगुजार बंदा है तो वो बीमारी से परेशान नहीं होगा, गम में नहीं पड़ जाएगा, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने जिंदगी के बहुत सारे बेशतर औकात उसको सेहत अता फरमाई। वो कितनी बड़ी नेमत थी, और इस बीमारी में वो तीमारदारों, मालिजों और दवाओं की सूरत में तसल्ली के जो सबब मयसर है, वो कितनी बड़ी नेमत है कि आपके पास तीमारदार भी है, आपके पास दवा भी है, आपके पास डॉक्टर भी है। इन नेमतों की भी कदर नहीं बाज लोग करते। लेकिन जो लोग उससे ज्यादा बीमार हैं, आप जरा उनका तो तसव्वुर करें कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को, जैसे छोटी बीमारी हो गई, हाय मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो बस ये हो गया, मुझे तो, भाई आप ये भी तो सोचें कि आपसे ज्यादा बड़ी बीमारियों के अंदर भी लोग हैं, इंसान हैं, अल्लाह ने हमें तो उनसे महफूज रखा ना, ये सोचकर शुक्र अदा कर सकते हैं। तो और फिर दुआ कर सकते हैं कि वो बीमारी दूर होने के लिए जो इंसान दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। लेकिन शिकवे वाले लहजे में नहीं, शिकायत कर करके, शिकायत ही तो नाशुक्रापन है, बल्कि अपनी कमजोरी के साथ, आजिजी के साथ, तकलीफ होती है इंसान को, लेकिन परेशानी भी होती है, लेकिन दुआ नाशुक्रे तरीके से नहीं करनी चाहिए। गिला शिकवा करके, मैं ही क्यों बीमार हूँ, मैं ही रह गई थी, मेरा ये हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, नहीं, अल्लाह आजमाता है तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करने से, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस आजमाइश में डाला, तू ही मुझे निकालेगा, तो अल्लाह ताला राजी होता है। देखिए इंसान पर जो शैतान का सबसे पहला हमला होता है ना, वो उसका है, वो उसका पहला हमला ही नाशुक्री है, वो उसको नाशुक्री में मुब्तला करता है। याद रखिएगा, इंसान के ऊपर शैतान का जो पहला हमला है वो नाशुक्री की सूरत में होता है। कुरान करीम में जब शैतान को कयामत तक जीने की मोहलत मिल गई, तो उसने अल्लाह ताला के सामने अपने इस इरादे का इजहार किया कि मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा, और हर तरफ से, हर सिमत से आकर उन पर हमला आवर होगा। फिर अपने इन जुमलों के जो हम मतलब सॉरी, इन हमलों के जो का नतीजा होता है वो बयान करते हुए कहा कि इससे मालूम हुआ कि शैतान मतलब आप इनमें से अक्सर जब अल्लाह ने जवाब दिया ना कि जैसे शैतान ने कहा ना कि आप इनमें से अक्सर को नाशुक्रा पाएंगे, तो अल्लाह ने कहा आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार भी पाएंगे ना। मतलब इससे मालूम हुआ कि शैतान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, और कोशिश है, वो ये कि अल्लाह ताला के बंदों को शुक्र की इबादत से महरूम कर दिया जाए और उन्हें नाशुक्रा बना दिया जाए। उसके बरखिलाफ जो बंदा शुक्रगुजार बनने का इरादा कर लेना पक्का, उस पर शैतान का दाव नहीं चलता, ये याद रखिए। गर्ज के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना एक बड़ी और अजीम इबादत है, और कितनी आसान इबादत है आप सोचिए। और ये अजीम इबादत सिर्फ चंद लम्हों में अदा हो जाती है। हदीस में आता है कि जो शख्स खाना खाकर शुक्र अदा करे, वो सवाब में उस रोजेदार के बराबर है कि जिसने खाने पर सब्र किया हो। बुखारी और तिरमिजी से है ये। आप देखिए कि खाना खाने के बाद अगर वो शुक्र करे। लिहाजा सुबह शाम की ये जो हमारी जिंदगी है ना, शब रोज की,
اس میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت یا کوئی خوشی جب بھی میسر آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کی عادت ڈالے، بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، آج سے ہی تیار کریں کہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم رمضان کی تیاری کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم نے اللہ کا ذکر، درود کی کثرت اور شکر کی کثرت کے ساتھ بڑھنا ہے۔ یہ ہے تیاریاں زمین والوں کی، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی گھر والوں کو عافیت سے دیکھے۔ آگے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والے ہمارے خیر خیریت سے بیٹھے، کتنے بڑے شکر کی بات ہے، کرتے ہیں شکر، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا کھانا سامنے آئے تو اپنی فیملی سے کہیں اللہ تعالیٰ، آپ خود جب آواز بلند اللہ کا شکر ادا کریں گے، فیملی سنے گی، فیملی کو بھی عادت ہوگی۔ ہوا کا اگر اچھا سا جھونکا بھی لگے نا آ کے چہرے پر تو اچھا معلوم ہو جائے نا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی موسم کی خوبصورتی ہو، کوئی چیز ہو، بچہ کھیلتا ہے نا بعض اوقات تو اچھا لگتا ہے آنکھوں کو، گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے میرے آنگن میں یہ پھول کھلائے۔ دیکھے نا دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو وہ بھی کوئی آزمائش ہے، وہ بھی اللہ کی کوئی اس میں بھی مصلحت ہوگی، لیکن جن کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر وہ چیز جس سے انسان کو خوشی ملے، راحت ملے، آرام ملے، اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بول کے نہیں کر رہے، اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کہ بزرگوں سے بھی نے بھی، ہمارے جیسے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ یہ تلقین فرمائی ہے نا کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا جائے، سوچا جائے، اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کیا جائے۔ مثلا تصور کر کے کیا، الحمدللہ میری اور میرے اہل و عیال، میرے گھر والوں کی صحت سلامت رہی، آج ہمارا دن اچھا گزرا، الحمدللہ سر چھپانے کے لیے گھر میسر ہے، کہیں روڈ پہ نہیں ہے، ہمیں بستر میسر ہے، آرام دہ بستر ہے، الحمدللہ جان و مال ہمارے خیریت حفاظت سے ہے۔ دیکھیں کتنی زیادہ راحت ہے، ان سب کو ایک ایک کر کے تصور کر کے اگر ان پر شکر ادا کریں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی عبادت کر رہی ہیں بستر پر لیٹے لیٹے، کتنی عظیم عبادت ہے یہ۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے۔ اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نیک بنے، تو ہم ان کو شکر کی عادت ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شکر کی عادت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے، وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے دوسرے اعمال بھی کرنے کی توفیق دیں گے۔ آج سے ہی ان کو شکر کرنے کی، ان کو رمضان کے آنے کی خوشی میں بھی شکر کرنے والا بنا لیں۔ آج سے ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس دلائیں، اور خود بھی، ہم جو خواتین ہیں نا، خاص طور پر ہم لوگ ناشکری کے کلمات کہنے میں ایک پل نہیں لگاتی، لیکن آج سے ہم نے ارادہ کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے کہ اب ہم اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری نہیں کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ سے اگر کبھی ناشکری ہو گئی مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے نا، میں تیری بندی ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں، تیرے سوا کون ہے میری دعاؤں کو سننے والا، تیرے سوا کون ہے مجھے معاف کرنے والا، تیرے سوا کون ہے مجھے اصلی راہ دکھانے والا، تو راہ دکھاتا ہے نا، تو نے مجھے راہ دکھائی ہے نا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اب میں کروں گی، اب مجھے کرنے والا بنا لے۔ تو یوں شکر کرنے کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے کہ صرف آپ نے وہ لفظ کہا، نہیں، ہر انسان اپنی زبان میں بھی شکر تو وہ تو بہت الحمدللہ تو ایک بہترین دعا بھی ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں بھی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کے لیے ایسے جامع الفاظ کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ جن میں ایک مرتبہ اگر آپ نے شکر ادا کیا تو اس میں ہزاروں مرتبہ کا شکر ادا کرنے کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے پاس اذکار وغیرہ کی کتابیں ہوں، آپ ان سے بھی دیکھ کے شکر ادا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسا کہ آج میرا اس میں ٹاپک تھا آسان نیکیوں میں اللہ کا ذکر۔ تو دیکھیں اللہ کا ذکر، درود شریف کی کثرت اور شکر، یہ تینوں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ سب جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں کہ کس طرح اپنے اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اصل اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہمارا آپ کا جو شکر ہے، ایسا شکر جو جو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود اور نبی کریم نے خود اس کو عظیم عبادت قرار دیا نا، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے کلمات کی تلقین فرمائی، خاص طور پر کہ اے اللہ، مجھے آپ کی مخلوق کے سوا
अपनी मखलूक के किसी और फर्द की भी जो भी नेमत मिले वो तन्हा आपकी तरफ से है। जो भी मतलब मुझे मिले या मेरे जितनी मखलूक है उसके पास जो भी है वो सब आपकी तरफ से है, अल्लाह तेरी तरफ से है और आपका कोई शरीक नहीं, बस आप ही की तारीफ है और शुक्र आपका ही है। तो देखें, आप अल्लाह ताला ही की बनाई हुई सारी जुबानें, हम जो भी जुबान बोलते हैं, बल्कि ये जो बोलना है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। आप उन लोगों को देखें ना कि जो बोल नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी शुक्र के कलमात सुबह के वक्त कहे, उसने अपने इस दिन का शुक्र अदा कर दिया, और जिस शख्स ने शुक्र के कलमात शाम को कहे, उसने शाम के अपने जो है उस दिन का, शाम की रात का उसने शुक्र अदा कर दिया। उसने अपनी रात का शुक्र भी अदा कर दिया। निसाई और अबू दाऊद से ये रिवायत है। तो आप देखिए कि हमारा आसान नेकियों में, जैसा कि हमारा मेन टॉपिक था अल्लाह का जिक्र, ठीक है, अल्लाह के जिक्र में मैंने आपको बताया कि सारे फवाइद बताए, अहमियत बताई, जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। सब तो खैर ये बहुत तवील टॉपिक है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बता पाऊंगी वक्त की किल्लत के बाइस, लेकिन मैंने आपको दोबारा मैं सारी गुफ्तगू को जोड़ रही हूँ कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और अल्लाह का शुक्र कसरत से अदा करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर रखे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी जुबानों को अपने नबी पर दुरूद भेजने वाली जुबान बना लें, और हम अल्लाह ताला आपको और मुझे और हमारी नस्लों को शुक्र करने वाला बनाए, अपनी नेमतें हम पर सलामत रखे और हम अल्लाह की नेमतों पर पल पल शुक्रगुजार बनते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ, अल्लाह की रहमतों के सबब, उसकी बेशुमार बख्शिशों इनायतों के सबब, कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों में हमें और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें कबूल फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने जिक्र में डूबा रहने वाला बनाए और हमें शुक्र में डूबा रहने वाला बनाए और दुरूद शरीफ की कसरत करने वाला बनाए। और रमजान शरीफ की आमद आमद है, आज ही से हम अपना लिख कर लगा लें कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र और दुरूद शरीफ की कसरत, ये तीन चीजें लिख कर लगा लें, ताकि जब जब आपकी नजर पड़ेगी, आप कुछ ना कुछ तो शुरू कर देंगी ना काम करने के दौरान, आपकी नजर पड़ेगी अल्लाह का जिक्र, तो आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर अगर आपकी दूसरी तरफ नजर पड़ी, लिखा हुआ है अल्लाह का जिक्र, फिर लिखा हुआ है दुरूद शरीफ की कसरत, तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी, चाहे आप एक दफा पढ़े, आपके 10 गुना माफ, 10 नेकियां आपके खाते में, 10 दर्जे बुलंद, तो आपको कितना अजर होगा, आप याद हो जाएगा। फिर आप लिख के लगाते अल्लाह का शुक्र, तो आपको तो अपने घर की एक एक नेमत के ऊपर अल्लाह ताला की याद आएगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये भी दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये भी दिया। अपने घरों के काम काज करते हुए, बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए, अपनी गाड़ियां चलाते हुए, अपनी जॉब पे जाते हुए, देखा करें, सोचा करें, जो पैदल जाते हैं वो ये सोचें, शुक्र है अल्लाह जो तूने मुझे पैर दिए, ताकत दी चलने की, मैं व्हील चेयर पे नहीं हूँ। जो गाड़ियों में जाते हैं वो दुआ करें, शुक्र है अल्लाह तूने मुझे ये नेमत बख्शी कि मैं कितने आराम से आते जाता हूँ। तो बच्चों की नेमत पे, घर की नेमत पे, हत्ता के हर हर नेमत पे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, महसूस करते हैं, सब पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारे इस शुक्र को कबूल फरमाए और अपनी नेमतें हम पर सलामत रखे। तो टॉपिक बहुत ज्यादा तवील है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हम इस पर अभी इतना ही रोकेंगे यहाँ पर, और हम नियत करेंगे, आप भी मेरे साथ नियत कीजिए कि हम आज से ही अल्लाह की रजा की खातिर, देखें हमारी ये जो क्लास हो रही है, अल्लाह के चेहरे के दीदार की खातिर हो रही है, अल्लाह को राजी करने की खातिर हम इस नियत के साथ हम इस क्लास में दाखिल हुए ना, अपनी नियतों को खालिस करें, दोहराएं और अपने दिल में तहैया करें, इसी वक्त अपने आप को तैयार करें और अपने दिल से वादा करें कि ए अल्लाह, मैं अपनी जुबान को तेरे जिक्र से तर रखूंगी, मैं तेरे नबी पर दुरूद भेजूंगी और मैं हर पल तेरा शुक्र करूंगी। अल्लाह ताला आपको, मुझे और हम सब की नस्लों को और सारी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह का जिक्र और शुक्र करने वाला और नबी पर दुरूद भेजने वाला बनाए, और अल्लाह हमारी इस इबादत, अजीम इबादत को कबूल फरमाए, और इसी के साथ नेकियां करते हुए हम अपने रमजान में दाखिल हों, और अल्लाह ताला हमारे रमजान की सारी छोटी बड़ी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।